Hello friends, now I am come up with a very serious and current issue. So today's video is addressing to the coronavirus. Okay, so as we all are know that the pandemic hits the world and the virus is continuing its spread across the world with over the 18 million confirmed cases in 188 countries and more than 7 lakh people lost their lives. So actually today we have a lots of rumors about coronavirus because of that social media. So it's very important for us to have a correct information about it. Okay. So as a doctor, today I am trying to explain it in the easiest manner. So this session would be helpful for each and everyone. Okay. And this is only my today's module. So stay tuned with me. So I have listed few questions which are frequently asked by the patient. Okay. So first one is how coronavirus spreads. Okay. ये कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है वो कैसे होता है, वो वन पर्सन से अनदर पर्सन में कैसे ट्रांसमिट होता है, या किन किन सर्फेसेस पे वो कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकता है. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज कैन कोविड-19 एबल टू फ्लोट इन एयर. क्या जो कोविड-19 है वो एयरबॉर्न इन्फेक्शन हो गया है या ये एयर के थ्रू वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसमिट होने लगा है. सो देयर आर सो मैनी कंसेप्ट रिगार्डिंग इट. ओके, so we will also discuss about it. The third and fourth question is how virus kills and why it only acts on lungs. कि इस वायरस की वजह से डेथ का कॉज क्या है, या फिर ये जो वायरस है ये सिर्फ लंग्स पे ही क्यों एक्ट करता है, बॉडी के अदर ऑर्गन्स लाइक हार्ट और किडनी या ब्रेन के टिश्यूज पे एक्ट क्यों नहीं करता है. ओके. एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज द चांसेस ऑफ बीइंग री इन्फेक्टेड विद कोविड-19 इज पॉसिबल. सो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि एक बार पॉजिटिव आने के बाद क्या फ्यूचर में वो री इन्फेक्टेड हो सकते हैं. And the sixth one is the tablet hydroxychloroquine. Can general public also use it? So there are so many wrong concepts regarding it. I am going to explain all that one by one. Okay. Now we starts with the spread of it. Okay. So during coughing, a large number of saliva droplet spread into the air, and each saliva droplet containing a number of viruses, and this droplet can able to spread up to 1 meter. Okay. सो क्या होता है कि जब कोई पर्सन कॉफिंग करता है या खांसता है तो उसके स्लाइवा ड्रॉपलेट जो है एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, और जो एक स्लाइवा ड्रॉपलेट होता है उसमें नंबर ऑफ 1000 तक जो है वायरसेस होते हैं, और ये जो स्लाइवा ड्रॉपलेट है ये एयर में 1 मीटर के डिस्टेंस तक जो है स्प्रेड हो जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ डिस्टेंस अप टू 1 मीटर. ओके. And the government guidelines are also there regarding it, so please take it very seriously. It's very mandatory for all of us. Now the second question is can virus is able to float in air. So the answer of this question is no, the virus is not able to float in air. It is not airborne transmission, it is a droplet transmission. Okay, ये किसी person में air के through transmit नहीं होता है. But in rare cases, it can able to deposit on dust particle and can be alive for 2 to 3 hours at there, especially in indoor crowded place where the ventilation is poor. Okay. अब यहाँ पर ये होता है कि ये जो है एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं है, ये एयर के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ केसेस में जो है ये डस्ट पार्टिकल पर डिपॉजिट हो जाता है और डस्ट पार्टिकल पर ये 2 से 3 घंटे तक सर्वाइव कर सकता है, स्पेशली इन इंडोर क्राउडेड प्लेस. कि जो प्लेस पर अगर कहीं सोशल गैदरिंग हो रही है और वहाँ पर जो है वेंटिलेशन पुअर है, सनलाइट प्रॉपर नहीं आ रहा है या अल्ट्रावायलेट लाइट्स का यूज़ नहीं किया गया है, तो ऐसे प्लेस पर अगर कोई पर्सन उस एरिया के कांटेक्ट में आता है, सो देयर में बी अ चांसेस टू बी अफेक्टेड. ओके. So for school, office and hospitals, it's very important for them to make a proper ventilation system or use the ultraviolet lights to destroy the virus soon. Now, other than dust particle, the COVID-19 is able to deposit on other surfaces also. Like in air, it can be able to survive up to 3 hours, on copper 4 hours, on cardboard 24 hours, stainless steel 2 to 3 days, and on plastic it can be able to survive up to 3 days. Okay. So the sanitization of the things are very mandatory. Okay. So how to sanitize the things or the proper way of sanitization, I will explain it in my upcoming video. Okay. Now the third question is how the virus kills and what is the cause of death. So to understand it, we need to go through the microbiology of the virus.
So the coronavirus having a crown like spikes on their surface which called S protein, okay, and having a RNA as a genetic material. Now this virus enter in our body through the respiratory tract in lungs, and the cells of the lungs also having a same spiky surface. अब जो ये वायरस है इस पर स्पाइक्स होते हैं, इस पर कांटे होते हैं। अब इससे सिमिलर स्ट्रक्चर जो है हमारे लंग्स के सेल की सरफेस पे भी होता है। हमारे लंग्स के जो सेल होते हैं उसकी सरफेस भी स्पाइकी होती है और इन स्पाइक्स को जो है S2 रिसेप्टर्स कहा जाता है, ठीक है। तो अब जो ये वायरस है उसका स्पाइक जो है वो लंग्स के सेल के सरफेस पे जो स्पाइक होते हैं उससे जाकर अटैच हो जाता है, ओके। और यही रीज़न है कि जो वायरस है सबसे पहले लंग्स को टारगेट करता है, क्योंकि S2 रिसेप्टर जो है ये स्पाइक लाइक जो प्रोजेक्शन है वो सिर्फ लंग्स में ही पाया जाता है, बॉडी के अदर ऑर्गन्स में नहीं पाया जाता, ओके। अब जब ये वायरस सेल में इंटर कर लेता है तो ये इसका रिप्लिकेशन शुरू हो जाता है, ये अपने जैसी डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है एंड बिकॉज ऑफ दैट सेल गेट डिस्ट्रॉयड। अब जब सेल डिस्ट्रॉय होता है तो नंबर ऑफ़ वायरसेस जो है लंग्स में स्प्रेड हो जाते हैं और बाकी के सेल को भी अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो एज वी ऑल आर नो दैट द सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ द लंग्स। सो अगर सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो लंग्स का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, लाइक उसका एक्सपांशन, उसका इन्फ्लेट होना जो है डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो है साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कॉफिंग एंड निमोनिया एक्सेट्रा। जो है इनमें मैक्सिमम पेशेंट होते हैं जिनमें सिम्टम्स माइल्ड होते हैं और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वायरस के इन्फ्लुएंस को कम कर देता है, इसीलिए इसमें जो है रिकवरी रेट ज़्यादा है। लेकिन जिन पेशेंट का इम्यून सिस्टम कम होता है, वीक होता है, उनमें जो है सीवियर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉम्प्लिकेशन दे लैंड अप इनटू सीवियर कंडीशन, ओके। Now the next question is chances of being reinfected with COVID-19 is possible? So answer of this question is yes, it can be possible but after long time. बिकॉज जब ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है तब हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है और ये जो एंटीबॉडीज़ होती है ये काफ़ी टाइम तक जो है प्रोटेक्शन दे सकती है, पर क्या ये प्रोटेक्शन परमानेंट रहेगा ये चीज़ प्रूवन नहीं है। And also the vaccines are also not available right now, but we will get it very soon. The research is going on. Now the last question is related to tablet hydroxychloroquine. So there are so many discussions going on about the role of hydroxychloroquine in prophylaxis and the treatment of COVID-19. Because this medicine is effective in 40% of cases, okay, and we cannot take this medicine as a precautionary measure. क्योंकि ये जो मेडिसिन है इसके जो है अदर ऑर्गन्स पे जो है साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड इवन जो कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी मेडिकेशन हैं वो विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना चाहिए, बिकॉज द मैनेजमेंट ऑफ डोजेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रीटमेंट इज़ ऑल्सो डिफरेंट इन एवरी केस अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो. My next video will be on how to sanitize the things and self-isolation, okay. So if you find this video helpful, please support our channel, subscribe it and like it. I will catch you soon in my next video. Bye, take care.